Hello students, welcome to class 9th Geography. Today I am going to explain the chapter Climate, its NCERT exercise. Children, the multiple choice question that is going to be conducted in periodic test second, such type of multiple choice question will come. Okay? So you have to be careful about all multiple choice questions. Understand? So what you have to do, that is, for example, this is a question: which one of the following places receive the highest rainfall in the world? Okay, so top choice are Silchar, Cherrapunji, Mawsynram and Guwahati. So your answer is Mawsynram. You have to click on C option. Okay. Second question: the wind blowing in the northern plains in summers is known as Kal Baisakhi, trade winds, Lu, or none of the above. Then your answer will be C option, Lu. Okay. In this manner you have to prepare all multiple choice question for periodic test 2. Okay. Here the third question is: which one of the following causes rainfall during winters in north-western part of India? Your answer will be cyclonic depression, western disturbances, retreating monsoon or south-west monsoon. So answer will be second one, B, western cyclonic disturbances. Okay. Then you have got another question. Monsoon arrives in India approximately in early May, early June, early July, early August. Your answer will be early June. Okay. Which one of the following characteristics characterizes the cold weather season in India? What will be answer? Warm days and warm nights, warm days and cold nights, cold days and cold nights, and cold days and warm nights. Your answer will be cool days and cold night. Understood? Then you have got many types of questions in this exercise. Okay, children? What are these questions? First question is: what are the controls affecting the climate of India? Okay? India के climate को कौन कौन से controls हैं that affect? So how will you write your answer? Your answer will be latitude, altitude, pressure and winds are the main factors. Clear, students? So these your factors that controls your climate, they are latitude, altitude and pressure winds. They are the main factors. Second question is: why does India have a monsoon type of climate? Your answer will be: India comes in the intertropical convergence zone, ITCZ. This fact in association with various other factors like El Nino, jet stream and Coriolis force. Okay, so they are the reason for monsoon type of climate in India, because of intertropical convergence zone that develops here. Your third question tells: which part of India does experience the highest diurnal range of temperature? Diurnal means sudden increase in temperature, that is high temperature. So your answer is northwestern part of India that experiences highest diurnal range. This happens because of presence of Thar desert. हमारा जो Thar desert है वो यहाँ पे present है. Clear? So in this manner we can say that Thar desert affects the climate here, and there is very hot temperature, and it is not moderating because there is no sea beside here. So there is no moderating effect of the ocean, that's why it is more and more hot. Question 4 says: which winds account the rainfall along the Malabar coast? Your answer will be monsoon winds. Understood? Monsoon winds जो होता है, it affects your rainfall along Malabar coast. Okay, children? Fifth question is: what are jet streams and how do they affect the climate of India? Okay, so fast flowing and narrow air currents are called jet streams. ओके जो हमारा बहुत तेज़ी से जो हमारा करंट एयर करंट फ्लो होता है,
It is very narrow and fast flowing. That's why it is jet stream. That this flow at high altitude. इसका altitude बहुत high होता है. Okay, that is about 1200 feet. इतनी ऊंचाई पर ये blow करता है आपका jet stream. That is troposphere में. The westerly jet streams are responsible for western cyclonic disturbances. Okay, जो हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, इससे हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है मेडिटेरियन सी की तरफ, ठीक है, और वहाँ से इंडिया में ठंडी के सीज़न में भी बारिश होती है. द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. अब ये हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ पोर्शन में ब्लो होता है. एंड द ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन. और ये सन के अपारेंट मूवमेंट की वजह से हमारा जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है. ओके चिल्ड्रन, सो द ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर इंडियन पेनिनसुला. यही ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जिसको ईस्टर्ली कहते हैं, राइट, और ये हमारे इंडियन पेनिनसुला पे ब्लो करती है. एंड फाइनली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये जो है इस आल्टीट्यूड लैटीट्यूड पे हमारा जो है समर मंथ्स में ब्लो होता है. देन योर क्वेश्चन 6 टेल्स डिफाइन मानसून. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून? ओके, सो वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर. द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मानसून. ओके, जो हमारा सीजनल रिवर्सल है विंड डायरेक्शन का, ठीक है, वही एक साल में जो हमारा विंड डायरेक्शन का रिवर्सल होता है हर एक सीज़न में, दैट इज़ मानसून. मानसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स. यहाँ ब्रेक्स आता है मानसून में. इसमें वेट स्पेल एंड ड्राई स्पेल दोनों होते हैं, ठीक है. द मानसून्स रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम एंड देन कम फ्रॉम द रेनलेस इंटरवल्स. ठीक है, बाद में रेनलेस हो जाता है. पहले खूब तेज़ी से बारिश होती है, फिर रेनलेस हो जाता है. Your 7th question is why is the monsoon considered a unifying bond, right? So that is very simple question. Although there are wide variations in weather patterns, हमारे weather patterns में बहुत wide variation है पूरी इंडिया में. And the monsoon brings some unifying influences on India. इससे हमारा एक unifying influence आता है, लोग unified हो जाते हैं. Indian landscape जैसे flora and fauna आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून. इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है फ्लोरा एंड फाउना का. द इंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर इन इंडिया इज़ गवर्न्ड बाय मानसून. हमारी पूरी इंडिया का टोटल कैलेंडर मानसून पे डिपेंड करता है. एंड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल. जैसे हमारा बैसाखी है, बिहू है, पोंगल है, ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ये एग्रीकल्चरल साइकिल पे डिपेंड करते हैं. दीज फेस्टिवल्स मे बी नोन by different names in different parts of the country. Okay children, so but their celebration is decided by the monsoon. If arrival of monsoon is late, then all celebrations are late. If it comes in time, then celebrations are in time. So it is also said that river valleys which carry rain water also unite as a single river valley unit. Okay, so it also depend on monsoon, because when monsoon come then rainfall occur and rainwater will come in these rivers. So this is a unifying bond. Okay, now we are coming to discuss one more question. Why does the rainfall decreases from the east to the west in northern India? Okay, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ नॉर्दर्न इंडिया में जाते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, मानसून क्यों जो है क्या होता है, मानसून विंड्स हमारा क्यों, मतलब मानसून हमारा डिक्रीज़ करने लगता, बारिश कम क्यों होने लगती ईस्ट से वेस्ट में. तो द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून विंड्स, जो हमारा मानसून विंड्स का बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में जाता, नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ से 7 का शेप लेकर के टर्न होता है वेस्ट की तरफ. क्लियर? तो इसकी वजह से क्या है, इट शेड हैवी रेनफॉल इन वेस्ट ईस्टर्न रीजन. और उसके बाद ये जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूसेस when it reaches towards west direction. Okay children, hence the rainfall decreases automatically. Okay, another question here, give reasons as to why. Okay,
सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों सीजनल रिवर्सल जो है विंड डायरेक्शन का हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही होता है? तो इट हैपन्स बिकॉज इट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसल। प्रेशर डिफरेंसल की वजह से जो हमारा तिब्बतन प्लेटो है यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और जो हमारा मेडागास्कर की तरफ वहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से हमारा विंड इट स्टार्ट्स टू कम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि यही रास्ते में पड़ता है। एंड एल नीनो हैज़ मेजर रोल। एल नीनो आपको पता है कि जब हमारे मेडागास्कर पेरू की तरफ जब हमारा कोल्ड विंड बनता है तब वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, उसी समय तिब्बतन प्लेटों में लो प्रेशर डेवलप होता है। दैट्स वाई योर विंड कम्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, इन दिस केस सीजनल रिवर्सल टेक्स प्लेस। अंडरस्टैंड? सेकेंड क्वेश्चन इज द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ। हमारा जो रेनफॉल का जो बल्क क्वांटिटी है कुछ ही महीने होता है। क्यों नहीं 6 महीने लगातार बारिश होती? तो द मानसून बिगिनस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अर्ली जून से मानसून स्टार्ट होता है, और ये क्या होता है बहुत तेज़ी से हमारी कंट्री के मिड जुलाई तक पूरी कंट्री को कवर कर लेता है। हैंस बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द मंथ्स ऑफ फ्यू मंथ्स ओनली, दैट इज़ जून टू अगस्त। जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने बारिश होगी। क्योंकि सारा मानसून हमारा इसी समय जुलाई तक कवर कर लेता है। थर्ड वन इज़ द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। ओके, तो द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर कंडीशन टू द बे ऑफ बंगाल। हमारा जो बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर कंडीशन है वो मूव करता रहता है, आज उधर है कल उधर है फिर कभी उधर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, दैट क्रिएट्स साइक्लोनिक साइक्लोन्स। ओके, अनदर क्वेश्चन इज द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ओके, नहीं, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल, है ना? तो तमिलनाडु कोस्ट में जो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे रेनफॉल होता है। इट रिसीव्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर कंडीशन टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर कंडीशन मूव करता है। द डेल्टा रीजन, अगला क्वेश्चन है, द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रीक्वेंटली स्टक बाय साइक्लोन। तो ये हमारा पोर्शन कह रहा है कि द बे ऑफ बंगाल इज़ द सेंटर ऑफ वेरियस प्रेशर चेंजेस एंड हेंस देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ड्यू टू दिस द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन। ओके, फिफ्थ कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। ओके, तो ये हमारे ज़्यादातर यहाँ क्यों जो है सूखा पड़ता है? तो दीज पार्ट्स फॉल्स इन रेन शैडो एरिया। ये अरावली हिल्स के रेन शैडो एरिया में फॉल करते हैं, दैट्स वाई दे आर ड्रॉट प्रोन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सम लॉन्ग आंसर्स। Describe the regional variations in the climatic conditions of India with the help of suitable examples. Okay, here is Indian Peninsula shows wide variation in climatic condition. हमारा जो Indian Peninsula है यहाँ climatic condition always vary from region to region. During winter season, the temperature goes into negative in Himalayan ranges. In northwestern India, temperature can range between 0 to 15, very less winter season में. And during the same season, the temperature in Chennai is moderate, that is 25 degrees Celsius, comfortable temperature. And the same variation can be seen in summer as well. While the temperature in Rajasthan can hover 47 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी में राजस्थान का टेम्परेचर हो जाता है, जबकि चेन्नई फिर भी 30 डिग्री सेल्सियस रह जाता है बिकॉज ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट। Okay, now we will discuss next question, discuss the mechanism of monsoon. I had already explained while teaching lesson mechanism of monsoon. Still you can understand all these things. Okay, the low pressure conditions over northern plains intensify beginning of June. हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर से अट्रैक्ट होता है। दिस
साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर। अब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करेंगे और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ से होते हुए इंडियन पेनिनसुला में इंटर करते हैं और इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ बारिश कराता है। एंड दीज विंड्स ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर, और इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी आता है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। ओके, हमें एक अकाउंट देना है वेदर कंडीशन का और कोल्ड सीजन में ख़ास तौर से। वी विल डिस्कस हियर द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एंड द वेदर इज़ यूजुअली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, आसमान साफ रहता है, टेम्परेचर इज़ लो, ह्यूमिडिटी इज़ लो and feeble variable winds very slowly moves, and the inflow of cyclonic disturbances starts from west and northwest is characteristic feature of cold weather। जो cyclonic disturbance हमारा मेडिटेरियन सी से ब्लो करता है, ये एक बहुत बड़ा फीचर है और इस समय ठंडी के सीज़न में भी बारिश होती है। एंड दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी, ये हमारा लो प्रेशर सीजन मेडिटेरियन सी में से ओरिजिनेट होता है। ओके चिल्ड्रन, एंड यू नो दे कॉज विंटर रेन, यही विंटर रेन कॉज कराते हैं जिसको महावत कहते हैं, आपने बुक में पढ़ा था। एंड स्नोफॉल भी होता माउंटेन्स में। देन यू हैव गॉट द वेरी लास्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। ओके, तो मानसून इसका हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मानसून रेनफॉल का। तो मानसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स, मानसून हमारा जो है रेनफॉल के टाइम में ब्रेक्स आते हैं, एक ड्राई स्पेल, वेट स्पेल। तो दी मानसून इज़ फेमस फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, अपनी अनिश्चितता के लिए फेमस है। ओके, सो इट मे कॉज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ एक पार्ट में जो हमारी कंट्री के एक पार्ट में बहुत हैवी फ्लड आता है, वहीं पे दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेन बिहेवियर। इट समटाइम्स डिस्टर्ब फार्मिंग शेड्यूल, इससे फार्मिंग शेड्यूल भी डिस्टर्ब होता है। एंड दिस अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स ओवर द कंट्री, इससे हमारी कंट्री के मिलियंस ऑफ फार्मर्स आर अफेक्टेड। ओके, सो दिस इज़ द लेसन यू हैव टू गो थ्रू।